हे फ्रेंड्स, सो टुडे आई वांट टू शेयर माय वेडिंग मेहंदी एक्सपीरियंस। सो जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, मेरी शादी एक अलग स्टेट में जाकर हुई थी, जस्ट लाइक अ डेस्टिनेशन वेडिंग। वेल, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन वेडिंग। एक्चुअली मेरी शादी मेरे हस्बैंड के प्लेस से हुई थी। सो बेसिकली इन आवर केस आई वेंट टू माय हस्बैंड्स प्लेस एंड हमारी जो भी वेडिंग की फंक्शंस थे वो सारे वहीं से हुए थे। तो हुआ यूँ कि मुझे मेहंदी आर्टिस्ट आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड नवंबर के एंड में। लाइक माय वेडिंग वाज इन मार्च, सो अराउंड 3-4 महीने पहले आई स्टार्टेड लुकिंग। Honestly, I was not very concerned about मेहंदी, because I thought कि इतना मतलब I'll easily get it somewhere, but this was not that easy as I thought. So when I started this mehendi artist hunt over Instagram and WhatsApp, I realized that the prices are very much dependent on the length of your mehendi design and the detailing work that was done. So that is fair enough. So I was very clear कि मुझे कैसा डिज़ाइन चाहिए, क्या लेंथ चाहिए। हालांकि I didn't give them an exact कॉपी कि मुझे ऐसा सेम टू सेम चाहिए अपने हाथ पे, but I just gave a reference kind of pictures and I told them that this is a kind of thing artwork that I expect for my wedding. एंड यहाँ तक कि मैंने एक मेजरिंग टेप से मैंने मेजर करके भी मेरी मेहंदी आर्टिस्ट को एक वीडियो बना के भेजा था, दैट आई वांट दिस मच लेंथ ऑफ मेहंदी फॉर माय वेडिंग। सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू कन्वे कि माय एज पर माय हाइट माय हैंड साइज इज लाइक वेरी स्मॉल। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट हर नो कि जितना शी इज थिंकिंग कि ज़्यादा लेंथ होगा उतना मेरे हाथ में नहीं होगा। एंड आई नो माई हैंड, सो आई ऑल्सो नो कि इसमें ज़्यादा हैवी वाले डिज़ाइन जो कि प्रॉपर ब्राइडल वाले होते हैं वो मेरे हाथ में फिट नहीं होंगे। So I knew these things and I wanted to convey this thing to her, and I think she understood everything. And then finally we came to a price that was 3,000 she quoted. So 3,000 was including my both hands and also both feet. Feet के लिए she told me कि she won't go for very heavy work, but she told कि थोड़ा like light work she can do that. So एंड उसके लिए भी मैंने सैम्पल्स उन्हें दिए थे कि दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन आई वांट फॉर माय फीट। एंड मैंने हाथ के लिए लाइक 4 साइड्स, पीछे भी और आगे भी 4 साइड्स ऑफ हैंड एंड इंक्लूडिंग द फीट, शी कोटेड 3,000। एंड दिस वाज अ फेयर प्राइस, आई वुड से। सो देन आई वाज वेरी सॉर्टेड आउट। आई थॉट लाइक ओके फाइन। एंड आई डोंट नो द वे शी वॉज टॉकिंग टू मी, इट वॉज वेरी हम्बल। एंड एज आई सेड कि मेरी शादी एक दूसरे स्टेट में हुई थी, सो देर वर लॉट ऑफ लैंग्वेज बैरियर एज वेल, बट शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू कम्युनिकेट विद मी। सो आई बिल्डेड अ ट्रस्ट इन हर कि ओके फाइन, आई बिलीव दैट शी विल डू वेल फॉर माई वेडिंग, एंड आई बुक्ड हर. Cut to 1 month before my wedding, I got a text from her that she has lost all her chats and if I could send her all those previous chats on which we had decided and the pictures and everything. So I just went back over the chat and I had noted down all the points like in a checklist. So I just copy pasted the same text and I sent it her, and also the designs, everything I had sent her. So there was one more thing that we had decided on. It was that I wanted the mehendi for my family members as well. So on that I asked her like how much is the charges for the cider part. So she told me she will get an extra artist along with her, so to help her out, because mehendi, like bridal mehendi itself, is a very time consuming process. So there should be someone else to take care of the guests. So she asked me the total number of guests and the number of hands they will go for. So I told there won't be like more than 5 to 6 people, and I cannot give you the exact count of number of hands because it's on their choice, right? Some people might go for 2 sides, some might go for 4 side. So आई जस्ट गेव एन एस्टिमेट कि मिनिमम हर कोई 2 साइड तो लगाएगा ही मेहंदी। तो on that she quoted me around like 250 rupees per side. So we had agreed on all these terms and conditions. So cut to 2 weeks before my wedding, she texted me and asked the wedding mehendi designs that she will be doing for the mehendi day. And honestly, I had this already in my mind that I'll be sending her exact copy like how I want, what design I want. बट इट जस्ट दैट कि आई गॉट सो बिजी ड्यूरिंग दैट टाइम कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं गो थ्रू करूँ फोटोज़ को एंड उसको बताऊँ कि मुझे ये चाहिए। बट समहाउ आई डिड मैनेज दैट, एंड वो थोड़ा मुझे जल्दी कर देना चाहिए था। लाइक मुझे 1-2 महीने पहले जब मैंने उसे बुक किया था तभी मुझे उन्हें क्लियरली बता देना चाहिए कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। बट ये चीज़ जो हुई वो बहुत ही लेट हुई, एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वेयर इट वेंट रॉन्ग। तो 3-4 दिन पहले, मतलब मेरी मेहंदी के 3-4 दिन पहले, आई टेक्सटेड हर विथ ऑल द डिज़ाइंस। तो डिज़ाइंस भी इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर हर, दैट आई ट्रूली अंडरस्टैंड, बिकॉज जब मैंने उनको डिज़ाइंस भेजा तो मैंने उनको एक फ़ोटो नहीं भेजी, मैंने उनको बहुत सारी मल्टीपल फ़ोटोज़ भेजी, एंड मैंने उनको मार्क करके बताया था कि मुझे इस फ़ोटो में ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इस फ़ोटो में ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, जो कि मुझे यहाँ अपने हाथ में यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ऐसे मैंने उनको एक स्टेप वाइज़ पूरा फ़ोटोज़ में ऐसे मार्क करके बताया था। सो टू बी स्पेसिफिक, मैंने उनको ये बताया कि आई डोंट लाइक फाइन डिज़ाइन, मतलब जो बारीक मेहंदी डिज़ाइन होते हैं ना, जो दूर से मतलब कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या बनाया है, वो वाले वैसे टाइप के मुझे मेहंदी डिज़ाइन नहीं चाहिए। आई वांट कि थोड़ा मोटा हो, थोड़ा थिक हो, लाइक फ्लावर काइंड ऑफ या लोटस काइंड ऑफ, वैसे डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने उनको फोटोज़ में ऐसे मार्क करके बताया कि आई वॉन्ट दिस पीस ऑन दिस पार्ट ऑफ माई हैंड। तो मैंने उनको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर, फोटो में मार्क करके उन्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। एंड सिमिलरली मैंने फीट का भी उनको वैसे ही बताया। फीट का आई केप्ट इट सिंपल, बिकॉज जैसा मतलब फोटो था मैंने स्टेटस में उनको भेज दिया, मुझे ऐसे सेम टू सेम चाहिए, इट वॉज नॉट मच चेंजेस।
सो व्हेन शी सॉ द फीड डिज़ाइन, शी टोल्ड मी कि ये थोड़ा सा हैवी है एंड इट विल नॉट बी कवर्ड दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इन द 3000 पैकेज। सो दिस केम एज अ शॉक टू मी बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया था। सो आई आस्क्ड हर कि ठीक है, जो पैकेज में कवर्ड है जिस टाइप का डिज़ाइन, आप मुझे वैसा सेंड करो, मे बी आई विल चूज़ फ्रॉम दैट एंड हम उस पे वी कैन गो विद दैट। बस मेरी एक कंडीशन थी कि आई वांट द लोटस इन सेंटर ऑफ द फीड। तो शी सेंट मी ओवर सम फोटोज लाइक 2-3 फोटोज एंड आई वाज ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज द फोटोज विच शी सेंट इट वाज वेरी नॉर्मल एंड वो बिल्कुल भी ब्राइडल किसी भी एंगल से लग नहीं रहे थे एंड वो इतना सिंपल था कि इवन आई कैन डू दैट। तो आई सेड कि सी दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस इट विल बी माई ब्राइडल डे and I want something more than this. And another thing she told me 2 weeks before my wedding is that because an extra mehendi artist is coming along with her to do the cider part, I had to pay 500 extra for that as well. And if I don't choose to pay this 500, then she will not bring the extra mehendi artist. Instead, she will do it by herself. आई मीन ब्राइडल मेहंदी को ही 2-3 घंटे लग जाते करने में एंड उसके बाद भी साइडर्स का अगर वो करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर हर एंड प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो आई एम ओके फॉर दैट 500, बट एटलीस्ट ये सारी चीज़ें उनको एट द टाइम ऑफ बुकिंग क्लियर करनी चाहिए थी, राइट? बिकॉज मैंने उनको बार बार चेकलिस्ट भेजी थी कि हमारा ठीक है, हमको 3000 में ब्राइडल मेहंदी करना है, 250 पर साइड साइडर्स का रखा है। सो नाउ दैट शी इज टेलिंग मी दिस थिंग्स, आई एम लूजिंग दैट ट्रस्ट ऑन हर। सो आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन आई अग्रीड टू हर पॉइंट कि उन्होंने मुझे 500 एक्स्ट्रा जो मेहंदी आर्टिस्ट आएगी उनका मुझे पे करना है एंड 1000 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे वो फीट का जो डिज़ाइन मैंने उनको भेजा था उसका मुझे अलग से पे करना होगा। दैट वी अग्रीड। नाउ कट टू माई वेडिंग डे, मेहंदी डे एक्चुअली। सो दे वर वेरी पंक्चुअल टू बी ऑनेस्ट, वो टाइम से पहले ही पहुंच गए थे एंड दे स्टार्टेड। उस टाइम पे मैं थोड़ी बिजी थी तो मैंने उनको कहा कि आप गेस्ट का पहले कर लो, तो आई दे स्टार्टेड विद द गेस्ट एंड फाइनली व्हेन माई मेहंदी स्टार्टेड एंड सो व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग माई ब्राइडल मेहंदी, शी रियलाइज कि जो हमने डिज़ाइन डिसाइड किया है, जो लेंथ हमने डिसाइड किया है, वो उससे थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा जा रहा है, लाइक 5-10 सेंटीमीटर ज़्यादा लगेगा उस डिज़ाइन में। एंड शी टोल्ड कि वो नहीं कर सकती है वो चीज़ एक्स्ट्रा बिकॉज वो 3000 का जो पैकेज है उसमें नहीं फिट बैठेगा, आई हैव टू पे हर एक्स्ट्रा फॉर दैट। And honestly, I don't like it because that was my mehendi day and I wanted it to be very peaceful and happy. So I just told her like, okay fine, whatever it is, जो भी extra होगा वो I will sort it out at the end, you go ahead. So she started and finally it took like almost 5 hours to complete everything, like my feet design and hand design, and उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, like she really put a lot of effort and थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ था बीच में, like my left hand वाला जो डिज़ाइन था, I felt कि जो फ्लावर उसमें बनाया हुआ था हाथ पे वो एंड उसका जो साइड में जो डिज़ाइन था, जो फ्लावर डिज़ाइन था उसमें बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप मुझे लग रहा था, बट इट वॉज लाइक वेरी लेट टू रियलाइज दैट, सो वी कांट डू एनीथिंग। एनीवेज ओवरऑल आई लाइक्ड हर वर्क एंड जब वो मेहंदी सब कुछ खत्म हुआ, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 9-9:30 एंड आई वाज वरीड बिकॉज दे हैड टू गो बैक एंड आई सजेस्टेड कि आप लोग रात को यहीं पे रुक जाओ, लाइक दे बोथ, बट दे सेड कि नो। बट सून दे रियलाइज कि उनकी जो लास्ट बस थी, दे हैव मिस देयर बस एंड अभी द ओनली ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल इज ऑटो या फिर कैब। सो बट द थिंग इज इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे यूज टू स्टे फार एंड उसके लिए भी आई हैड टू पे देम फॉर देयर रिक्शा। So it was around 600 and I paid that amount and I don't have anything to say on that because obviously I wanted them to reach home safely and it went well, but I would say कि अगर ये सारी चीज़ें जो भी डिज़ाइंस थे, मेरी भी गलती थी कि मैंने उनको डिज़ाइंस थोड़े लेट भेजे, लाइक 2-3 दिन पहले भेजे एंड वो थोड़ा मुझे पहले ही उन्हें भेज देना चाहिए था, बट उनके साइड से भी देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गए लास्ट मोमेंट पे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी एंड ओवरऑल मुझे उनका काम अच्छा लगा था एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी दैट टाइम एंड नाउ ये जो मेरा मेहंदी वाला दिन था वो हमने मेरे शादी के 1-2 दिन पहले डिसाइड किया था, लाइक मेरी शादी अगर 16 को थी तो माई मेहंदी वॉज ऑन 14th। तो दिस वॉज सजेस्टेड बाय हर ओनली सो दैट शादी तक वो कलर अच्छे से उभर के आए। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, शादी के टाइम लाइक आई विल हैव अ वेरी गुड लुक एंड वो हुआ भी, शादी के टाइम पे बहुत अच्छा कलर आ गया था उसमें। बट जो शादी के आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है एटलीस्ट वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहता तो और भी अच्छा लगता मुझे बिकॉज लाइक जस्ट आफ्टर लाइक 2 days ऑफ माई वेडिंग इट स्टार्टेड कमिंग ऑफ। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि ये इतनी जल्दी निकल जाएगा एंड इट फील्स रियली सैड। तो मैंने उनको फिर से जब वो पील ऑफ हो रहा था तो आई सेंड हर अ पिक्चर लाइक 2 days आफ्टर माई वेडिंग की सी इट इज़ कमिंग ऑफ वेरी सून। तो ऑन दैट शी सजेस्टेड कि ठीक है आप केमिकल्स मत यूज़ करो, लाइक सोप वगैरह मत यूज़ करो, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज हम कई बार हाथ धोते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं, सो इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट प्रैक्टिकल ऑप्शन कि हम केमिकल में अपना हाथ नहीं डालें। सो